ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. Hare Krishna. So we're now going to discuss about the definition of brahmacharya. It is said that karmana, manasa and vacha, by your activities, by your mind, by your vacha, vani, sarva avasthasu, sarva avastha, at any position, condition, sarvada, in all the places, sarvatra, I mean in all the places that and at all the time, in any condition, one who does maithun tyag, who avoids the sex life, it is called a brahmachari. So the vow of brahmacharya is meant to help one completely abstain. ब्रह्मचर्य का जो व्रत है वो हमें हेल्प करता है टोटल सेक्स इंटेलिजेंस से अवॉइडेंस करने का, यानी कि सेक्स इंटेलिजेंस किस तरीके से, कैसे किस तरीकों से व्यक्ति सेक्स में इंडल्ज हो सकता है, बाय वर्ड्स, बाय माइंड एंड बाय एक्टिविटीज, किसी भी तरीके से. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रह्मचारी, जो व्यक्ति अपने माइंड में किसी वुमन के बारे में सोचता रहता है, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के बारे में सोचता रहता है, वो भी ब्रह्मचारी नहीं है, क्योंकि इज नॉट ब्रह्मचारी बाय माइंड. सो वी हैव टू बिकम ब्रह्मचारी बाय माइंड, बाय वाचा एंड कर्मा. वी विल डिस्कस इन डिटेल नाउ. As per the commentary of Sridhar Swami in Srimad Bhagavatam 6.1.12, he describes there are 8 aspects of brahmacharya life. 8 प्रकार से एक व्यक्ति को ब्रह्मचारी मानना चाहिए अगर वो ये सारे काम करता है, which is one should not, ये 8 चीजें उसको नहीं करनी है. कौन सी? Think about woman. When we are saying think about woman, it means think about woman to enjoy. Although you can always think about your mother, how to serve. You can always think about Radharani, how to serve, how to become servant of Radharani. But when we are saying think about woman, think about the beauty of woman, bodily structure of woman, different parts of the body of woman, with the idea to enjoy. So one should not think about woman, number one. One should not speak about sex life, that is by words, vacha. So many times we crack a lot of jokes which we call non-veg jokes, which are sexual jokes, jokes on the bodily parts, on some intercourse or some things like that. सेक्स के ऊपर अलग अलग तरह के जोक बोलना, या किसी लेडी को डिस्क्राइब करना, उसकी बॉडी को डिस्क्राइब करना, दिस इज बाय वर्ड्स. सो वन शुड नॉट स्पीक अबाउट सेक्स लाइफ. वन शुड नॉट डेली विद वुमन. डेली विद वुमन मीन्स वन शुड नॉट हैव casual relationship with women. Sometimes nowadays people saying we are just friends. So इस तरह की casual relationship is not prescribed. उनके साथ में कैजुअली घूमना इत्यादि. तो दिस a brahmachari should not be doing this. And then look lustfully at woman. काम इच्छा से किसी स्त्री को देखना, उसके वस्त्रों को देखना, उसके अंगों को देखना. One should not do that. Fifth, one should not talk intimately with woman. One should not intimately means बहुत ही closely अपने हृदय की किसी लेडी के साथ बात करना, who is not your mother, specifically, who is not sister. उसके साथ इस तरह से बातें करने से क्या होगा, धीरे धीरे हमारी अटैचमेंट उससे बढ़ जाएगी, और फिर धीरे धीरे रिलेशन बढ़ेगा, and that can be very dangerous. So one should not be very intimately talking to a woman. One should not, sixth, decide to engage in sexual intercourse. ये डिसीजन लेना कि अब हमें थोड़ा एंजॉय करना चाहिए किसी स्त्री के साथ. So one should not do that. One should not endeavor for sex life. तो not only decide, obviously endeavor भी नहीं करना चाहिए, उसका प्रयास नहीं करना चाहिए. हम प्रयास कब करते हैं, हम ऐसे कई मूवीज देखते हैं, हम कैसे कई जगहों पे चले जाते हैं जहाँ इस तरह के काम करे जाते हैं, तो वी आर एंडीवरिंग, हम प्रयास कर रहे हैं. हम कुछ वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे विच आर नॉट गुड. वी आर डूइंग एंडीवरिंग फॉर सेक्स लाइफ. We should not engage in sex life. That is 8th. So generally a person would think that brahmachari means who does not engage in sex life. This is only one of the point. इसके अलावा 8 पॉइंट है टोटल, जिसमें कि हम बोलते हैं कि वुमन के बारे में सोचना नहीं है, सेक्स के बारे में बोलना नहीं है, वुमन के साथ, किसी भी गर्ल के साथ कैजुअल रिलेशनशिप नहीं बनाना है, लाइक अ फ्रेंड. किसी भी वुमन को
काम इच्छा से देखना नहीं है, मदरली देखना है, इसलिए चरणों की तरफ देखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। कभी आई टू आई कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। हमें बहुत ही अपने हृदय के सीक्रेट किसी लड़कियों को या वुमेन्स को नहीं बताने चाहिए, तो उससे रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। हमें सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए डिसाइड नहीं करना चाहिए, हमें इसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, और फाइनली हमें इसको नहीं करना चाहिए। तो ये 8 चीजें हैं जो एक ब्रह्मचारी के आचरण में होनी चाहिए। और इस प्रकार जो ब्रह्मचार्य को पालन करता है उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। वर्णाश्रम सिस्टम में आप जानते हैं ब्रह्मचारी पहला आश्रम है। ध्यान रखिए, ब्रह्मचारी जो है वैदिक साहित्य के हिसाब से हमें ब्रह्मचारी जो हमारी लाइफ है, आप जानते हैं कि पहले 25 साल ब्रह्मचारी, सेकंड कैन बी गृहस्था, ब्रह्मचारी कैन बी अ गृहस्था एज वेल, और ही मे डिसाइड टू बी अ ब्रह्मचारी फॉरएवर, फॉर लाइफ। सो अगर हम सोचें कि वो गृहस्थ बनेगा तो पहले 25 साल ब्रह्मचारी, सेकंड 25 साल गृहस्थ, एंड देन वानप्रस्थ, एंड देन संन्यास। तो ये जो पहले 25 साल हैं हमारे वैदिक लाइफ के अनुसार, ये पहले 25 साल हमें चरित्र निर्माण के और भक्ति पैदा करने के लिए इस्तेमाल करने चाहिए, जो कि आज की डेट में ऐसा नहीं हो रहा है। आज की डेट में बच्चे 10-12 साल से ही इंद्रिय तृप्ति की चीजों में लग जा रहे हैं, और कई लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, कई लोग लड़कियों के साथ रिलेशन बना लेते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं, और धीरे धीरे रिलेशनशिप बढ़ के सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट कि पहले 25 साल हमें टोटल ऑस्टेरिटी की लाइफ जीनी है। ये खास तौर पे जो 25 साल है, दिस इज अ टाइम फॉर ट्रेनिंग, अ वेरी रिगरस, रिगरस समझते हैं आप, बहुत ही सख्त कठोर तपस्या डिसिप्लिन का समय है, क्योंकि हमारा माइंड इस वक्त फ्रेश होता है। बहुत सारी हैबिट्स हमारे जीवन में अभी पड़ी नहीं है, धीरे धीरे हम 25 साल के बाद कई सारी हैबिट्स पढ़ने लग जाएंगी, फिर उन हैबिट्स को हटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा लाइफ में। इससे पहले कि वो हैबिट्स पढ़ें, हमें डिसिप्लिन में आ जाना है। इस वक्त हमारे पास बॉडीली स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त होती है, तो इस बॉडीली स्ट्रेंथ से हम लोग बहुत सारा इस तरह के स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की हैबिट्स अभी से डाल सकते हैं। तो दिस 25 years of our first 25 years of our age are for strict sadhana, regulation and tapasya, and this is the brahmachari life। और ब्रह्मचारी लाइफ के बाद वन में डिसाइड टू बिकम अ गृहस्थ, और वन में बिकम अ नैष्टिक ब्रह्मचारी, और बृहद व्रता। बृहद व्रता होता है बहुत ही ग्रेट वाव, जिसमें कोई व्यक्ति ये प्रतिज्ञा करता है कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं भीष्म प्रतिज्ञा का ना, भीष्म पितामह, ग्रेट वाव। तो भीष्म प्रतिज्ञा क्या थी? मैं पूरे जीवन आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। तो एक आजीवन ब्रह्मचारी, नैष्टिक ब्रह्मचारी वो होता है जो अपना सीमन, अपना वीर्य कभी भी वेस्ट नहीं करता है, आइदर मैनुअली। आजकल के बच्चे नकली तरीके सीख जाते हैं, विच इज कॉल्ड मास्टरबेटिंग, which they use their hands and things like that to masturbate and to discharge the semen। आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि उससे कितना बॉडीली एंड मेंटली कितना बड़ा नुकसान है और कितना बड़ा पाप कर्म है। तो नैष्टिक ब्रह्मचारी वो है जो किसी भी तरीके से अपना सीमन, अपना वीर्य कभी व्यर्थ नहीं करता। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने ब्रह्मचारी की डेफिनेशन में बोला कि ब्रह्म में चरति इति ब्रह्मचारी। जो ब्रह्म, देखिए ब्रह्मचारी ब्रह्म का आचरण करे, मीन्स जो ब्रह्म को रियलाइज करके वैसा आचरण करे वो ब्रह्मचारी, यानी कि उसका लाइफ का पर्पस स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है। इसलिए वो हर तरीके से सेक्स लाइफ को अवॉइड करता है बाई माइंड, बॉडी एंड वर्ड्स, मनसा वाचा एंड कर्म। तो जो इससे टोटली बचता है वही ब्रह्मचारी कहलाता है। ठीक है, ओके। तो अब हम सुनेंगे कि ब्रह्मचर्य पालन करने के लाभ क्या है। ऐसा लगता है कि तो बड़ी कठोर जिंदगी हो जाएगी, लेकिन इससे फायदा क्या है? जब आपको पता चलेगा इसके फायदे क्या हैं तो आप जरूर इसको करेंगे। जब हम ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, जब इसका पालन करते हैं, तो हमारी उम्र बढ़ती है, क्योंकि हम बॉडी के वाइटल जो वीर्य है, वीर्य आपकी हेल्थ को बढ़ाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम उसको वेस्ट नहीं करते तो उससे हमारी ताकत बढ़ती है, हमारी लाइफ बढ़ती है, इवन हमारी ब्यूटी बढ़ती है, क्योंकि आपको बुढ़ापा जल्दी से नहीं आता, इसलिए आप लंबे समय तक हेल्दी रहते हैं। आपका फेम और पाइटी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? आपका फेम और आपका नाम इसलिए बढ़ता है क्योंकि आपके पाप कर्म करने जाते हैं। क्योंकि जब हम वीर्य यूजलेसली उसको वेस्ट करते हैं तब वो एक पाप कर्म माना जाता है, जो आपके जीवन में दुख लेके आता है, इनफेमी मतलब बदनामी लेके आता है। कहीं ना कहीं से उसका रिएक्शन आपको मिलता है। ब्रह्मचारी का पालन करने से हमने बताया इनर स्ट्रेंथ मिलती है,
अंदर से आदमी ताकतवर, क्योंकि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाता है तो ताकतवर महसूस करता है। ध्यान रखिए, हम लोग कमजोर या ताकतवर इस बात से पता चलता है कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कितना कंट्रोल करता है, ना कि इस बात से कि वो कितना, उसके बाइसेप्स कितने मोटे हैं, वो घूंसा कितनी जोर से मार सकता है। हमने देखा है कि बड़े से बड़ा ताकतवर व्यक्ति किसी परिस्थिति में घबरा जाता है क्योंकि इनर स्ट्रेंथ नहीं होती। इसलिए इनर स्ट्रेंथ उसके अंदर होती है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाता है। उसके अंदर हमेशा माइंड में उसके एक रेस्ट, हाँ, पीसफुल रहता है, शांत व्यवहार रहता है, क्योंकि जो इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है वो शांत रहता है, और जो इंद्रियों को तृप्त करने के लिए भागता रहता है वो हमेशा परेशान रहता है। तो इस प्रकार अब ब्रह्मचारी जो है हमेशा शांत रहता है, उसकी उम्र ज्यादा होती है, जैसे हमने बताया उसकी मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों ज्यादा होती है, हाँ, उसकी मेमोरी बढ़ती है। जैसा बताया गया, आयुर्वेद बताता है कि किस प्रकार से वीर्य जो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मस्तिष्क में जाता है। जो व्यक्ति अपना वीर्य वेस्ट नहीं करता आर्टिफिशियल तरीकों से या किसी अपोजिट सेक्स के साथ, उसका वीर्य धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है, उसके मस्तिष्क को नरिश करता है, उसकी मेमोरी बढ़ती है, विल पावर बढ़ती है, थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ती है, पावर ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ती है, वो बहुत जल्दी फिलोसॉफिकल चीजों को समझ जाता है। तो इतने इसके फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं, हाँ। और खास तौर पर वो भगवान की कृपा को प्राप्त कर पाता है, क्योंकि ऐसे समय पर जब सारा संसार भोगने में लगा है, वो भोग से हटकर अपना ध्यान भगवान में लगाता है। ध्यान रखिए, द पर्पस ऑफ फॉलोइंग अ ब्रह्मचर्य इज टू कंसंट्रेट ऑन आवर स्पिरिचुअल life, to enhance, develop our spiritual life. What is otherwise what is the use of being a brahmachari? तो इससे हम भगवान को जल्दी प्रसन्न कर पाते हैं। तो उसके लिए ब्रह्मचारी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लाइफ हम सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आपका ये वंडरफुल टाइम है कि आपको बड़े सही समय पर ये नॉलेज दी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है। अदरवाइज हमारे अंदर कई सारी गंदी हैबिट पड़ जाती है आजकल के यूथ में, खासतौर पर मास्टरबेटिंग, जो कि बाद में छुटाई नहीं छूटती है। हम देखते हैं लोग इसके लिए बड़ा पछताते हैं, लेकिन वो हैबिट बन जाती है। इसलिए जरूर सुनिए, इन फायदों को बार बार सुनिए, हाँ, और इनका पालन कीजिए। तो अब हम समझेंगे कि ब्रह्मचर्य भी एक बॉडीली डेजिग्नेशन है। जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी है, कोई व्यक्ति गृहस्थ है, कोई व्यक्ति वानप्रस्थ है या सन्यासी है, ये भी स्पिरिचुअल डेफिनेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी है, डज नॉट मीन कि वो व्यक्ति भक्त है। कोई व्यक्ति सन्यासी भी है, सब कुछ सारा संसार को छोड़ के बैठा है, डज नॉट मीन कि वो एक बहुत बड़ा डिवोटी है। इसलिए हमें कभी ब्रह्मचार्य लाइफ पर प्राउड नहीं करना है, यस आई एम अ ब्रह्मचारी, आई एम अ सेलिब्रेट, मैंने कभी भी अपना वीर्य वेस्ट नहीं किया है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु हमेशा बोलते थे कि ना तो मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं क्षत्रिय हूं, ना मैं शूद्र हूं, ना मैं वैश्य हूं, ना मैं गृहस्थ हूं, ना मैं ब्रह्मचारी हूं इत्यादि। मैं केवल क्या हूं? गोपियों के पद कमलों पे चलने वाला दास, दास और दास का दास हूं। ये हमारी सही पहचान है, ये हमारी सही डेजिग्नेशन है। श्रील प्रभुपाद अक्सर एक श्लोक बोला करते थे, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्प्रत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते, कि हमें सभी उपाधियों से मुक्त होना है। ये उपाधियां क्या है? ये जो शरीर के आधार पर दी जाती है। तो ब्रह्मचार्य एक शरीर के आधार पर दी गई उपाधि है, यह आत्मा की उपाधि नहीं है। आत्मा तो नित्य कृष्णदास है, लेकिन शरीर ब्रह्मचारी या सन्यासी बन जाता है। इसलिए अगर हम बहुत ज्यादा इस बात पे फोकस करने लगेंगे ब्रह्मचारी 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 ही बनना है, सबको ब्रह्मचारी ही बनना है, तो वो बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ हो जाएगा। हाँ, हमें क्या बनना है? हमें डिवोटी बनना है। हम आपको एग्जाम्पल देते हैं मायावादी सन्यासियों का, कि जो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं ब्रह्मचर्य व्रत रखने में, मायावादी सन्यासी। और हमें मालूम है जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में गए थे तो वहां पर कई सारे मायावादी सन्यासी थे जो स्ट्रिक्टली सेलिब्रेट थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। लेकिन महाप्रभु उनके घर में नहीं रुके, उनके यहाँ पे नहीं पाया प्रसाद। वो कहाँ रुके? गृहस्थ के यहाँ रुके, जो ब्रह्मचारी नहीं है। तपन मिश्र के यहाँ रुके, चंद्रशेखर के यहाँ रुके, उनका प्रसाद पाया। ब्राह्मण, एक बहुत ब्राह्मण का प्रसाद पाया। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने दिखाया कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि यू आर ब्रह्मचारी और यू सन्यासी, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, यू आर डिवोटी। इसलिए आपको ब्रह्मचारी बनने के साथ साथ अच्छा डिवोटी बनना पड़ेगा, अच्छा सर्वेंट बनना पड़ेगा। और चैतन्य महाप्रभु ने बाद में उन सन्यासियों को भक्त बनाया और फिर उनके घर में प्रसाद पाया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के जो इंटरनल एसोसिएट्स भी हैं उसमें भी कई सारे, जैसे हम सुनते हैं रामानंद राय वॉज गृहस्थ, सिकी महिती गृहस्थ। और हम ये भी देखते हैं कि किस प्रकार से जो स्वरूप दामोदर थे, वो स्वरूप दामोदर वॉज नॉट अ प्रॉपर सन्यासी, वो ब्रह्मचारी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी नियमों का पालन नहीं किया सन्यास के, लेकिन ही वॉज एन एक्सॉल्टेड डिवोटी। हरिदास ठाकुर जन्म से एक तरह से शूद्र थे,
हम मुस्लिम के यहाँ पैदा हुए थे, फिर भी उनको नामाचार्य बनाया गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी एक व्यक्ति के भक्ति भाव को देखा, ना कि उसकी बॉडीली डेजिग्नेशन। सो एनी बॉडीली डेजिग्नेशन डज नॉट गारंटी दैट यू विल बिकम अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो इस तरह का जो ये जो चिंतन है, जो हम कहते हैं किबा न्यासी, किबा न्यासी शूद्र किबा है, जो हम कहते हैं कोई सन्यासी क्यों ना हो, कोई शूद्र क्यों ना हो, कोई ब्राह्मण क्यों ना हो, डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। जो कृष्ण तत्व को ज्ञाता है वही गुरु है वास्तव में। ये हमें समझना पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें फिर भी नियमों से बंधना है ब्रह्मचारी लाइफ की, क्योंकि यदि हम नहीं बनेंगे तो हम इस शुरू के 25 साल में इंद्रियां बड़ी स्ट्रांग हो जाती हैं और बहुत डिमांड करती हैं। यदि हमने स्ट्रिक्ट वाउस वचन नहीं लिए तो हम इन गलत बुराइयों में पड़ जाएंगे, हम इंद्रियों को तृप्त करने में लग जाएंगे और हम गौदास बन जाएंगे, यानी कि इंद्रियों के दास बन जाएंगे। हमें क्या बनना है? हमें कृष्ण दास बनना है, हमें कृष्ण दास दासानुदास बनना है। हमेशा ध्यान रखना है कि ब्रह्मचारी जो है इस वर्णाश्रम में सबसे छोटा है, इसलिए हमेशा उसका हाथ जुड़ा रहना चाहिए। गृहस्थ के लिए भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बेटर हूँ गृहस्थ से क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हूँ। उसको हमेशा हम्बल रहना है, क्योंकि उसको अपने को सबसे छोटा मानना है, क्योंकि इस पूरे वर्णाश्रम में सबसे पहले ब्रह्मचारी आता है। ब्रह्मचारी का कर्तव्य है कि बाकियों को सर्व करे, अहंकार ना करे, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति भगवान को कभी प्रिय नहीं है और भगवान किसी भी कारण से उसका ब्रह्मचर्य तोड़वा देंगे। जैसे विश्वामित्र को अहंकार हुआ, लेकिन उनका व्रत टूट गया और मेनका के चक्कर में लग गए और उसके साथ उन्होंने सेक्स कर लिया, वीर्य वेस्ट हो गया। तो इस प्रकार उनका ब्रह्मचर्य व्रत टूट गया। इसलिए हमेशा हम्बल बना रहना है, हमें हमेशा प्रार्थना करनी है क्या कि देवी ऐसी गुणामयी मम माया दुरत्या, या आपकी माया जो है बहुत प्रबल है, कभी ऐसा ना हो कि मैं किसी स्त्री के प्रति अट्रैक्ट हो जाऊं और वहां पर गिर जाऊं। इसलिए हमेशा हम्बल बना रहना है, इसमें प्राउड फील नहीं करना है। हमेशा ये सोचना है कि ब्रह्मचारी इज ऑल्सो डेजिग्नेशन, ये एक उपाधि है और हमें सभी उपाधियों से मुक्त होना है। लेकिन एट द सेम टाइम इन 25 सालों में आपको स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य का पालन करना है। याद रखिए वो 8 चीजें जो हमें नहीं करनी है। समराइज सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो मन से, वचन से और कर्मों से कभी किसी स्त्री के बारे में चिंतन या कोई कार्य या उनसे आपसी मेल जोल नहीं बढ़ाना है। ठीक है, तो हम अब ये सुनेंगे कि ये सेक्स डिजायर ये आया कहां से, ये इच्छा जीव के अंदर कहां से आई। क्योंकि हम सुनते हैं कि संसार में जो कुछ भी है वो स्पिरिचुअल जगत से ही आया है या भगवान से ही आया है। बट जो भी संसार में हम देखते हैं वो उस स्पिरिचुअल जगत का परवर्टेड फॉर्म है, यानी कि उसका बिगड़ा हुआ रूप है। तो उसका मतलब ये हुआ कि यदि इस जीवन में हमारे अंदर ये अपोजिट सेक्स को भोगने की जो इच्छा है, इसका मतलब ये इच्छा कहीं ना कहीं ओरिजिनली स्पिरिचुअल जगत से आ रही है। और ये स्पिरिचुअल जगत में अपने किस रूप में है जो यहाँ पर ये बिगड़ कर इस रूप में दिखती है। तो वास्तव में देखेंगे कि आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये जो रस है जो इस भौतिक जगत में है, सेक्स डिजायर का, जो कि वास्तव में रस तो नहीं कहना चाहिए इसको, ये जो परवर्टेड डिजायर्स हमारे अंदर हैं, ये स्पिरिचुअल जगत में भगवान के माधुर्य प्रेम से आती है। इसको हम कहते हैं आदि रस। हम देखते हैं कि भगवान का गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ एक माधुर्य संबंध है, इसको हम कॉन्जुगल लव भी कहते हैं। भगवान के साथ हमारे रसों में हम शांत रस पहला रस माना जाता है, फिर दास्य रस, फिर साख्य रस, फिर वात्सल्य रस और अंत में माधुर्य रस। तो माधुर्य रस जो है भगवान का उनके 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 गोपियों के साथ एक प्रकार का माधुर्य रस है, कॉन्जुगल लव है ये। बट इस रस के अंदर जरा सा भी देयर इज नॉट अ टिंज ऑफ सेक्स डिजायर। ये जो भगवान का गोपियों के साथ जो रस है, जो हम भगवान की लीलाओं में सुनते हैं, रास नृत्य सुनते हैं इत्यादि जो लीलाओं में सुनते हैं, उसमें कहीं भी सेक्स नहीं है। सेक्स इस संसार का परवर्टेड फॉर्म है, ध्यान रखना पड़ेगा इसको। हम देखते हैं कि बहुत सारे महान भक्त जो कि एक तरह से संसार को त्याग चुके थे, उनके अंदर थोड़ा सा भी रंच मात्र भी सेक्स डिजायर नहीं था, बल्कि वो शारीरिक चेतना से ऊपर थे। वो भी भगवान के माधुर्य रस के बारे में चर्चा जरूर करते हैं, जो कि संसार में देखने में एक लड़का लड़की का शारीरिक संबंध या प्रेम संबंध लगता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी ही वॉज अ ट्रांसेंडेंटलिस्ट, वो वस्त्र तक नहीं पहनते थे। हमने सुना था कि किस प्रकार से एक समय पर कुछ गोपियों ने उनको आते हुए देखा,
कुछ लेडीज ने उनको आते हुए देखा, और आते हुए देखने के बाद भी उन्होंने अपने वस्त्र नहीं धारण किए। वो स्नान कर रही थी एक पौंड में, हाँ, ये देखते हुए कि जो सुखदेव गोस्वामी है उनके अंदर जरा सा भी देहात्म बुद्धि नहीं थी, हाँ, तो वो इस लेवल पे नहीं थे कि स्त्री और पुरुष में भेद करे। ऐसा व्यक्ति रास नृत्य के बारे में श्रीमद् भागवत में चर्चा करते हैं। उसी तरह से हम देखते हैं रामानंद राय, हाँ, जो कि कई बार कुछ प्ले करते थे तो वो स्त्रियों को तैयार करते थे, तैयार व्यार भी वो खुद करते थे, लेकिन फिर भी जरा सा भी विचलित नहीं होते थे। बड़ा मुश्किल काम है हमारे लिए, तो ट्राई करना भी ठीक नहीं है। लेकिन वही रामानंद राय हम भगवान की अंतरंग लीलाओं के बारे में चैतन्य महाप्रभु से डिस्कस करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सुखदेव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रामानंद राय, इन सभी लोगों ने इस आदि रस की प्रशंसा करी है, लेकिन एट द सेम टाइम इन्होंने इस सेक्स डिजायर को, इसकी निंदा करी है, इसको रिजेक्ट किया है, इसको नेग्लेक्ट किया है। हाँ, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जब ये आदि रस सही रूप में हम इसको समझते हैं तो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ करता है, और जब हम इसको बीच में खुद को भोक्ता बना लेते हैं, जब हम सोचते हैं, हमारे हृदय में यह आ जाता है कि जैसे कृष्ण भोग रहे हैं वैसे मैं भी क्यों ना भोगूं, तब ये परवर्ट होकर या बिगड़ कर यही आदि रस सेक्स डिजायर बन जाता है। क्योंकि हम प्योर नहीं है, इसलिए हम जब उस रस को भोगना चाहते हैं संसार में तो हम उसको सेक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, विच इज काइंड ऑफ एक तरह से निंदनीय कार्य है। आप जानते हैं कि बड़े से बड़े लोगों का जो फॉल होता है, जो भक्ति में गिरते हैं, वो इसी के कारण है। हम देखते हैं बहुत सारे योगी हैं, ज्ञानी हैं, जो बहुत तपस्या करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी एडवांसमेंट नहीं हो पाती। कई बार हम देखते हैं कोई भगवान का भक्त है जो चैंटिंग कर रहा है, प्रेयर कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेक्स डिजायर वो उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता, बल्कि उसका गिरावट हो जाती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन कृष्णा डज इट, ही डज इट इन अ वेरी प्योर फॉर्म, एंड व्हेन वी गो टू द बैक टू द गॉडहेड, जब हम संसार में जाएंगे तो हम भगवान की इस लीला में भगवान की मदद करेंगे, वृंदा देवी की तरह, भगवान की सखियों की तरह, और इसमें भगवान का आनंद बढ़ाएंगे, ना कि हम खुद ही सोचेंगे कि क्यों ना मैं भी ऐसा करूं। जब हम ऐसा सोचते हैं तो इस मेटेरियल जगत में इसका नाम सेक्स डिजायर हो जाता है, जब हम खुद ही अपोजिट सेक्स को भोगने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए ये रस आता तो भगवान के धाम से ही है, लेकिन हम इसको बिगाड़ देते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से। तो ये हमें समझना हो। हरे कृष्णा।